Hello and welcome. This is the first introductory session of this program Excelling with Excel. Now in this course we are going to learn about Microsoft Excel. हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एडवांस लेवल्स. नाउ दिस वी विल बी डूइंग दिस विद अ टच ऑफ फाइनेंस. दैट इज जो भी एग्जांपल्स हम टेकअप करेंगे दैट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स सॉल्विंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. ओके, वाई इज़ एक्सेल इम्पॉर्टेंट? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एक्सेल सीखने की ज़रूरत क्या है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब एक स्प्रेडशीट का मतलब होता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपने देखा है जिसमें सेल्स बने हुए हैं विथ which is organized into rows and columns, then that is called a spreadsheet. So spreadsheet software remains one of the most ubiquitous pieces of software. That is, this software is omnipresent. आप किसी भी country में किसी भी organization में चले जाएं, so you are most likely to find this software across the world. Okay, and in fact if you ask me, then the first software that I have used on my workplace was nothing but Microsoft Excel. And why only on the first day? We are using it each and every day in finance. एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम एक्सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, especially if you are in the finance role or an accounting role. Because if you take a walkthrough through the finance department or accounting department of any organization, so आप जो view आप देखेंगे that will be like everyone is juggling between worksheets on their workstations. Okay. One reason for Excel success is due to the success of the Microsoft Office suite as a whole. अभी जो पूरा Microsoft Office का पैकेज है that comprises of Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ये तीन जो ट्रायो है, this is the lifeline of I can say every organization. But इनके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर्स हैं like Publisher, Access, OneNote वगैरह. But what I need to say is that since this Office suite has become an integral part of the functioning of every office, every organization, so it is implied for us as part of that organization to learn and understand how these softwares, these applications work. It has become the preferred tool for creating dynamic financial models. Now let me tell you that financial models बनाने के लिए जो spreadsheet software है, Excel is the predominantly used software. बट ऐसा नहीं है कि एक्सेल इज़ द ओनली सॉफ्टवेयर. देर आर अदर टूल्स आउट देयर और भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक पाइथन जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल इज़ रियली कॉम्प्रिहेंसिव एज इट गोज़ बियॉन्ड फाइनेंस. सो सिंस this software, this application is not limited to be used by only one organization, to be used by only one department. So this point is another reason why it is so prevalent in every organization, right? So who uses it? People like people belonging to the business development. Business development people are those who are responsible with onboarding new clients. Then marketing people, HR, that is human resource department. In fact you can use it for personal finance as well. अब पर्सनल फाइनेंस के लिए इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑलरेडी दैट देयर आर सम इनबिल्ट टेम्पलेट्स गिवन विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर ट्रैकिंग योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, फॉर प्रिपेयरिंग मंथली बजट्स, एंड यू कैन डू अ लॉट मोर within Excel as far as personal finance is concerned. So if you are not using it already, you should give it a try. The power of Excel. Now what attributes or what characteristics Excel has जिसकी वजह से हर organization इसको use कर रही है. The first one being that it is a very easy and effective tool. It is very simple and yet very effective. अब आज के डेट में भी आप जो भी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप एक्सेल में कर सकते हैं and Excel does the job very well. Also it has powerful analytical ability to analyze large amount of data and the ability to organize and structure your data. Now these are some things which are yet to test out. जो हम exercises perform करेंगे उसमें Excel की जो analytical ability है, data organization capability है, that we are going to test. It has graphing capabilities to summarize data. Now you can not only process data, you can get the output in a very presentable manner with the help of graphs. देखिए पहले Excel में आप जो चीज़ें यूज़ कर सकते थे लाइक शेप्स या 2D मॉडल्स, अब
with the new advanced versions of Microsoft Excel, especially talking about 2019, तो उसमें Excel ने icons को introduce किया है, then 3D models, 3D graphs को उन्होंने introduce किया है. Now, so this has taken the graphing capability of Microsoft Excel to another level. So इससे benefit क्या हो रहा है? Organizations को ये benefit हो रहा है कि उन्हें कैलकुलेशंस के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है. जिस सॉफ्टवेयर पे आप इनपुट से प्रोसेसिंग तक आए वहीं से आप आउटपुट निकालिए एंड डायरेक्टली आपको जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है उसमें जाके आप पेस्ट कर दीजिए. दैट सिंपल. पावरफुल फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड सर्च टूल्स. नाउ as what does it mean? It means that Excel gives you the power to search for any particular value. आप किसी भी डेटा को पिन पॉइंट करके आप ढूंढ के निकाल सकते हैं even in a big jungle of data. So that is really a powerful tool. And अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें जो सबसे important feature है Excel का, that is pivot table. Now I'm a big fan of that feature because it has very wide applications and उसके साथ आप बहुत चीज़ें आप बहुत efficiently कर सकते हैं. Now that of course is a part of this program, so which we are going to learn. And lastly, VBA enhances Excel capabilities further. VBA stands for Visual Basic for Applications. Now it is an event based programming language. मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, आपको VBA में जाके कोडिंग करना है एंड अकॉर्डिंगली एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिज़ायर्ड पर्पस. अब VBA का एक्सेल में इंटीग्रेशन हो जाने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, दैट जो भी काम हम पहले मैन्युअली करते थे अब उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं. ओके वैसे VBA का एप्लीकेशन सिर्फ इतना सा लिमिटेड नहीं है. VBA हैज़ वेरी वाइड एप्लीकेशंस एंड इसको डिटेल में सीखने जाएंगे तो एक अलग से कोर्स बन सकता है. इनफैक्ट देयर आर डेडिकेटेड कोर्सेज आउट देयर फॉर लर्निंग स्पेसिफिकली VBA. इनफैक्ट इफ इसकी और एप्लीकेशन समझाने के लिए आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई यूज टू हैव अ कलीग हु यूज टू play a game called 2048 within Microsoft Excel, and that could have been made possible with the help of VBA. Now I am telling you to just to indicate कि VBA का application कहाँ तक जा सकता है to preparing a game as well. But of course हम उस level तक हम नहीं जाने वाले. We will be limiting our discussion to how we can use VBA and macros to in our daily usual work life and also as far as financial modeling is concerned. Now the burning question is who should pursue this course. This program is intended for anyone who seeks to learn Microsoft Excel. If you are a beginner, that is आपने कभी Excel या तो काम नहीं किया या फिर जो बेसिक स्टफ हम स्कूल लेवल पर सीखते हैं अगर सिर्फ उतना ही आता है आपको, then what you can learn, what you can get out of this program is that you can build a solid foundation. एक जो convenience चाहिए होता है किसी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, so जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथ बैठाना, that you will be able to achieve. It will also allow us to reach an advanced level. देखिए इस प्रोग्राम का as such कोई prerequisite नहीं है. अगर आपको कुछ information, कुछ knowledge नहीं है पहले से, then also you can go through this program and we will start with the basic stuff that एकदम scratch से start करेंगे, एकदम zero से start करेंगे. But it does not mean कि हम एकदम basic पर ही रहेंगे. We will gradually move on to more advanced level as we proceed in this program. It will allow you to gain more confidence because this is the application which you are going to work on a daily basis. जिस सॉफ्टवेयर पे आपको डेली काम करना है, अगर उस सॉफ्टवेयर पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको उस सॉफ्टवेयर के नुएंसेस पता है, सब इन एंड आउट्स आपने पता है, तो it will help you gain more confidence at your workplace. And also it will help you become employment ready. Now I will not say that Excel सीखने से कोई भी जॉब गारंटीड हो जाती है, बट Excel नहीं सीखने से कोई भी फाइनेंशियल रोल या अकाउंटिंग रोल वाली जॉब नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है. आई थिंक आई डू नॉट हैव टू से दिस. एंड इन केस यू आर अ मॉडरेट यूज़र, मतलब आप Excel यूज़ करते आ रहे हैं, आप अभी भी वर्क प्लेस पर Excel यूज़ कर रहे हैं, देन हाउ दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. The first thing is that it will help you to enhance your productivity. Now enhancing productivity means that you are able to handle more loads of work with lesser efforts in a lesser time. It will also allow you to reduce the mouse usage. अब माउस को यूज़ करना या कीबोर्ड को यूज़ करना एज पर्सनल लाइफ में उतना मैटर नहीं करता है, बट इफ़ यू आर इन द प्रोफेशनल लाइफ तो इसके दो इम्प्लीकेशंस आते हैं. नंबर वन,
अगर आप कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उतने एफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग अ कीबोर्ड, बिकॉज एक्सेल इज सच एन एप्लीकेशन विच इज़ meant to be used with keyboard. अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मोर एफिशिएंट देन द वन हु इज़ यूजिंग अ माउस. नंबर वन. नंबर टू, माउस को यूज़ करने से इट ऑल्सो गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा यूज तो नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. सो इफ़ यू आर एबल टू यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम आप अपने एम्प्लॉयर्स पर, आप अपने कलीग्स पर एक अच्छा इंप्रेशन भी बना रहे हैं. थर्डली, इट विल अलाउ यू टू लर्न न्यू एप्लीकेशंस. देखिए एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हो सकते हैं. सो हो सकता है कोई फार्मूला, कोई फीचर आप अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, बट यू डू नॉट नो दैट इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव, एक दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता था. सो you might learn some new applications of the formulas and the features that you are already using. And lastly, that if you are not updated with the latest version of Microsoft Excel 2016 में बहुत नए features introduce हुए थे, Excel 2019 में there are some new features. So if you are not updated with that, you can learn this as well. And finally, learning to confidently operate this software means adding a highly valuable asset to your employability portfolio. As I already said, कि आप इस the knowledge that you gain out of this program, and of course the certification that you get on successful completion of this program, then these will definitely add some value to your CV. Okay. Table of contents, what exactly are we going to learn in this program? As I said that we will start with right from the scratch, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. एक्सेल में किस पोर्शन को क्या बोला जाता है, एक्सेल का इंटरफेस कैसा है, एंड व्हाट इज़ द रिबन, व्हाट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, व्हाट इज़ द स्टेटस बार एंड ऑल दैट स्टफ. बेसिक शॉर्टकट्स देखिए, हम एकदम कट कॉपी पेस्ट को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड इनफैक्ट अगर उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करने का स्कोप हुआ तो आई विल डेफिनेटली डू दैट. Navigation keys is how do you navigate within a worksheet within the various tabs on the ribbon. Manipulating worksheets. Now I'm not reading one by one. This table of contents is basically for your reference. So आप इसको pause करके अच्छे से इसको read कर सकते हैं. ओके, फॉर्मेटिंग टूल्स है, इस पर हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओनली परफॉर्म द कैलकुलेशंस, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ टू प्रेजेंट योर एनालिसिस इन अ बेटर वे. एंड फॉर्मेटिंग टूल्स में स्पेसिफिकली द पार्ट विच आई फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द सेल फॉर्मेट्स पार्ट, एंड पर्टिकुलरली कस्टम सेल फॉर्मेट्स. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू प्ले अराउंड विद कस्टम सेल फॉर्मेट्स. उसमें बेसिकली आपको एक्सेल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम वाइल डिस्कसिंग कस्टम सेल फॉर्मेट्स. एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एट द वेरी बेसिक लेवल. नेम मैनेजर इज देयर, पेज स्पेशल, ट्रांसपोज आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं यूजिंग द पेज स्पेशल एज वेल, दोनों ऑप्शंस है. वी आर गोइंग टू चेक आउट बोथ. डेट फंक्शंस में देयर आर अ लॉट ऑफ डेट फंक्शंस. यहाँ जस्ट मैंने एक ग्रुप का हेडिंग मेंशन कर दिया, इसके अंदर देयर आर अ लॉट मोर फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू चेक आउट. कंसोलिडेट फीचर, an interesting feature, and one of the recently added features, importing data, how to import data from various sources like Microsoft Access से आपको कोई database import करना है, या text document से कुछ text import करना है, और any information from the internet, from the web as well. Text functions, there are a lot of text functions which we are going to discuss. Sorting and filtering is there. अब sorting and filtering का मतलब आपको पता होगा, if you have purchased any product online, तो वेबसाइट्स पे जो शॉर्टिंग के ऑप्शंस रहते हैं, दैट इज़ प्राइस लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ शॉर्टिंग. एंड फिल्टरिंग के एग्जांपल्स हो गए, इफ़ यू आर लेट्स से गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, तो उसमें आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने GB का रैम चाहिए, कितने GB का हार्ड डिस्क चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर. सो आप जब उस क्राइटेरिया को सेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो डेटा है, जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, वो फिल्टर होकर आते हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन, दैट क्राइटेरिया दैट यू हैव स्पेसिफाइड. सो वो सेम चीज़ आप एक्सेल पर भी कर सकते हैं विद द डेटा दैट यू हैव. ग्रुपिंग एंड हाइडिंग. प्रिंटिंग सेटअप. अब प्रिंटिंग सेटअप का एक अपना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का एक डेडलाइन होता है. एंड इफ़ यू नो हाउ टू प्रिंट वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ लेसर टाइम विथ मोर ऑर्गेनाइज्ड इन एन एफिशिएंट वे, देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एट वर्क. Math functions, various mathematical functions.
if functions, a lot of if functions are there, error checks, conditional formatting, this is particularly very important. Wildcard characters, this can be unique or new to some of to many of you. That wildcard characters का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब कोई भी नाम अगर लेट्स से मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज रिलायंस एंड कहीं पर मेंशन्ड है रिलायंस लिमिटेड, फिर और कहीं मेंशन्ड है मेसर्स रिलायंस लिमिटेड. सो बेसिकली दीज थ्री आर वन एंड द सेम एंटिटी, राइट. बट एक्सेल उसको डेफिनेटली उसको अलग अलग ट्रीट कर रहा है. तो आप एक्सेल को कैसे बताएं, हाउ कैन यू मेक एक्सेल अंडरस्टैंड कि वो तीनों एंटिटीज़ को एक ही तरह से ट्रीट करें एंड नॉट डिफरेंटली. सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. तो इस पे वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्सरसाइजेस टू लर्न अबाउट वाइल्ड कार्ड. Then text to columns is there. Flash fill, so flash fill is a very smart tool which allows us to overcome or bypass various formulas. So अब बहुत formulas को हमें use करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब से flash fill introduce हुआ है. So वो smart work समझना भी ज़रूरी है so that we can avoid using complex formulas wherever that is not required. Now error types means what possibly can go wrong while you are using a formula, and उन गलतियों को कैसे ठीक करना है that will be discussed under error types. Pivot table, as I already said, a very detailed discussion with a lot of practical applications we are going to see with the as far as pivot table is concerned. Macros and VBA का एक separate session एक dedicated session रहेगा जिसमें हम various applications सीखेंगे macros का. Trace precedence and dependence, subtotal, interactive charts, hyperlinks, data validation. अब data validation में जो सबसे popular feature होता है that is creating a list, creating a drop down list. But इसके भी हम कुछ एक step beyond जाएंगे that how can we create a dependent drop down list. एक drop down list तो समझ में आता है, but एक dependent drop down list का मतलब क्या है? If you go to any website, so अगर आप let's say किसी country को अगर आप select करते हैं first field में, सो एंड उसका जो सेकेंड फील्ड है अगर दैट इज पर्टेनिंग टू स्टेट्स, सो जब आप जो कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट फील्ड, अकॉर्डिंगली आपके सेकेंड फील्ड पर वो ऑप्शन ही आते हैं जो स्टेट्स उस कंट्री में हैं, राइट. सो इन दिस केस आई कैन से दैट द सेकेंड फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच वी कैन परफॉर्म ऑन द एक्सेल एज वेल. सो उसको कैसे करना है दैट वी विल सी. फोरकास्ट शीट इज देयर. अब फोरकास्ट एक फॉर्मूला भी है एंड एक फीचर भी है, सो वी आर गोइंग टू चेक देम बोथ. सॉल्वर इज देयर. सॉल्वर क्या करता है, आप कोई भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई कीजिए, कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम आप बताइए सॉल्वर को एंड इट अटेम्प्ट्स टू गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. Then data table is data table, goal seek and scenario manager. Basically these three are part of the what if analysis. And इसका फाइनेंशियल एज फार एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज कंसर्न तो इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है एंड फाइनेंशियल मॉडल्स में भी ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. लर्निंग पाथवे, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम किस तरह से शुरू करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस प्रोग्राम. सो नथिंग टू डिस्कस एज सच हियर. Things to handle with care. Not knowing keyboard shortcuts will make you inefficient, so you have to be really fast. Throughout this program, our endeavor will be to perform all the functions using the keyboard shortcuts only, except for a few cases, for a few circumstances जहाँ पर मैं खुद ही आपको बोल दूंगा कि यहाँ पे माउस यूज़ करना बेटर रहेगा. So other than that, हम ज़्यादातर काम हम Excel keyboard shortcut से ही करेंगे. Poor formatting may leave a bad impression on clients or employers. So as I said कि हम formatting tools पे decent amount of time spend करेंगे. So you have to implement this in your practical life as well. जब भी आप अपनी calculations को, अपने analysis को आगे present करें, so you should make use of this formatting tools. Know how to deal with errors. जब भी आप formulas use करेंगे, so there are going to be a lot of errors. उन errors को कैसे समझना है, कैसे deal करना है, कैसे fix करना है, that we will see. एंड स्पेशली अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड एरर्स की बात है, सो द वन मोर कॉमन एरर इज सर्कुलर रेफरेंसिंग. सो उस पर भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे कि उसको कैसे डील करना है. लास्टली, मैक यूजर्स विल हैव टू फॉलो डिफरेंट सेट ऑफ शॉर्टकट्स बिकॉज in the program I'll be discussing or mentioning only the keyboard shortcuts pertaining to Windows only.
सो अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, मैक एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो शॉर्टकट लिस्ट है, सो आपको जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके डिफरेंट होने वाले हैं. सो आइदर यू कैन मेल अस एंड गेट द शॉर्टकट लिस्ट फॉर दैट, या फिर आप एक डाउनलोड भी कर सकते हैं मैक एक्सेल शॉर्टकट लिस्ट. दैट विल बी डेफिनेटली अवेलेबल इन द, दैट मस्ट बी ओपनली अवेलेबल. एंड ऑल्सो देर इज़ एन ऑप्शन कि अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, तो आप जो विंडोज़ एक्सेल है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन योर मैकबुक. देर आर वेज टू डू दैट इफ़ यू कैन फाइंड देम आउट. The Excel version that I will be using is 2019, the latest version, so that I can show you what are the features available within the latest version of Microsoft Excel. If you do not have 2019 version, if you have 2016 version, then also it will suffice, because थोड़े से फीचर्स ही ऐसे होंगे जो आप शायद मिस करेंगे, जो आपको 2019 में है, जो 2016 में नहीं है. बट अगर आप 2016 से भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लाइक 2013 वर्जन, तो उसमें फिर आप 2016 के फीचर्स भी मिस करेंगे और 2019 के फीचर भी मिस करेंगे. 2016 में भी कुछ अच्छे वैल्यू एडिशंस हुए थे, लाइक फोरकास्ट शीट. ओके, तो वो चीज़ें फिर आपको नहीं मिलेंगी. एंड अगर आप 2013 से भी पुराना वर्जन यूज़ करें, लाइक 2010 और 7 और इवन 2003, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं. यू शुड ट्राई टू अपग्रेड दैट, बिकॉज अगर आप अभी आज के टाइम पे अगर आप इतना पुराना सॉफ्टवेयर सीखते भी हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. जब आप वर्क प्लेस पर जाएंगे तो यू विल बी यूजिंग वन ऑफ द रिसेंट वर्जन्स ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो वहाँ पे फिर आपको ट्रांजिशन करने में अगेन यू विल फेस सम चैलेंजेस. सो इट इज़ बेटर अगर आप जो भी रिसेंट वर्जन आपके लिए पॉसिबल है उसको आप अपग्रेड कर लीजिए. What do you get in this program? You will be provided with video lectures. You will be provided with practice workbooks which will contain some keynotes कि formulas वगैरह में syntax वगैरह कैसे रहता है, कैसे use करना है उनको. Some illustrations, how to use those formulas, and of course at the end there will be some exercises. Exercises आपके करने के लिए हैं, illustrations मेरे करने के लिए. ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस में आई विल शो यू कि किसी फार्मूला को, किसी फीचर को कैसे यूज़ करना है. ये एक्सरसाइज पहले आपको करने की ज़रूरत है कि आप उसको परफॉर्म करें, आप उसको ट्राई करें जो भी आपने सीखा है इलस्ट्रेशंस में, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू यूज़ दैट फीचर और फार्मूला परफेक्टली और नॉट. नाउ ऑफ कोर्स द सॉल्यूशन टू दिस एक्सरसाइजेस विल आल्सो बी देयर इन द वीडियो लेक्चर्स इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज द cheat sheet. Now this is nothing but a list of Excel shortcuts that we are going to discuss, and some shortcuts beyond that. And lastly, the certificate which you are going to get on successful completion of this program. Lastly, there is a quote. I'll conclude with this thought here, that don't be too comfortable with employment, especially in the COVID-19, after the post-COVID-19 era. I don't think that many people are comfortable with their employment. So what you need to do is you need to discover yourself and see what you can achieve for yourself. That is, you need to keep discovering, you need to keep learning new skills, you need to keep exploring new opportunities कि आप क्या चीज़ें और सीख सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो particularly आपको इंटरेस्ट करता है, जो जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं. So when you keep learning, you will stumble upon that one particular skill जिस पर आप अपना पूरा कैरियर को बेस कर पाएंगे. Okay, so keep learning, keep earning and keep growing. So with this, I conclude this introductory session here. If you have any queries regarding this program, if you want to know any details, so for your inquiries you can reach out to us in this given mail ID. So that's all for the introduction here. See you in the next session.